Hi everyone, good morning everybody, welcome to the session. So today we are going to start with Indian Budget 2021 Part 2. Because this year's budget there have been 6 pillars, right? We have health and well-being, we have physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation in R&D, minimum government, maximum governance, right? There are 6 pillars on which this year's budget has been created. So that is why we are also going to cover the Indian budget in 6 parts. This is part number 2. Okay, in part number 2 today we are going to first recall what we studied in part 1 in short. ठीक है, so make sure that you are making notes with me in the class, and then we are going to move ahead with the physical and financial capital and infrastructure part of the budget. Okay, so as I told you about the budget, the important terms in the last session, you will have the link of it in the description box also. You can visit it if you have not visited that session, not watched that session. Before we start the class PDF will be uploaded on my Telegram channel. The name is Simplifying UPSC with Ease, and the link is also given below in the description box. Okay, you can find the link in the description box. You can join the channel and you can download the class PDF after the class has been uploaded. Okay, so let's start the session. Also, before we start the session, here's a small announcement for all of you. Unacademy has started a very wonderful initiative, and that is free test series for UPSC CSE aspirants. Free test series. Now only 5 months are left, and your UPSC notification is about to come on 10th of Feb, right? So that is why, as you practice the test, as you practice more and more mock test, your mind will get trained. Okay, you will get trained to face the real challenge in the examination. So that is why for all of you, free test series have been launched. So there are 3 test series which have been launched: T20 Daily Current Affairs Test Series, then we have Unacademy Rise 2.0 and Unacademy Impulse. Unacademy Impulse will take place thrice in a week, that is on Tuesday, Thursday and Saturday. 60 marks का test होगा आपका, 30 MCQs will be there, 40 minutes time will be given to you, and daily it will be thrice in a week, it will be conducted at 10 AM. Okay, then Unacademy Rise, the languages English and Hindi both, again 30 minutes का test होगा, 20 questions होंगे और 40 marks का test रहेगा आपका. ठीक है, ये डेली होगा. एंड T20 करंट अफेयर्स, नाउ दिस इज ओनली करंट अफेयर्स बेस्ड. डेली वॉट एवर करंट अफेयर्स यू स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी टेस्टेड. सो डेली 7:30 PM यू कैन टेस्ट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, 20 मिनट का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे. एंड देन आफ्टर एवरी टेस्ट ना यू विल बी गेटिंग डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन ऑल्सो. हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा. सो दीज आर फ्री टेस्ट. यू कैन यूज द कोड ARPITA10 टू अनलॉक इट फॉर फ्री ऑन द Unacademy Learning app. You can go to the Unacademy Learning app, select the goal as UPSC CSE, then go to the test section. If prompted, use this code. ठीक है, अगर prompt option आता है कि कोड यूज करें तभी आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो, तो ARPITA10 कोड यूज करना and unlock it for free and give it. Okay, I'll be giving you the link of these test series, ठीक है, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देती हूँ, नीचे वीडियो के नीचे है, आप उस पर क्लिक करके इसको इनरोल कर सकते हो. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. देन क्लास शुरू करते हैं. मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स इन द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट बजट, यूनियन बजट की जब हम बात करते हैं, यू कैन राइट इट डाउन. व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट, द फर्स्ट थिंग इन द 2021 यूनियन बजट दैट कम्स टू आवर माइंड इज, पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने बोली है वो ये है दैट इंडिया इज प्लानिंग टू रीच द $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक माइलस्टोन. इस साल के बजट में भी ये क्लियर किया गया, राइट? सो यू कैन ओवर हियर राइट इट डाउन दैट इंडिया इज प्लानिंग like the last year and last to last year, this year also India is planning to reach the $1 ट्रिलियन milestone, economic milestone. हम GDP वाइज $1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक माइलस्टोन रीच करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस साल के बजट में भी. And the underlying theme of this year's budget, I'm not asking about the real theme, the base theme of the budget, the underlying theme, यानी कि पर्दे के पीछे क्या एम है, क्या थीम है इस साल के बजट की, वो है आत्मनिर्भर. And this theme you will see in each and every scheme, policy और act that has been launched. जो भी आपके वेलफेयर प्रोग्राम पॉलिसीज लॉन्च किए ना गवर्नमेंट ने, तो उसके पीछे का जो लो लाइंग थीम है, अंडरलाइंग थीम है, छुपी हुई इंटेंशन है, वो है आत्मनिर्भर. वो ये इंटेंशन है. आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंस. ठीक है,
when you are not dependent on anybody. And this year because of this pandemic we have taken this pledge of becoming Atmanirbhar. Pandemic के वजह से तो ये automatically हमने pledge लिया था that we are not going to, no longer going to depend on China or any other country per se, right? So that is why the underlying theme is Atmanirbhar, self-reliant. So over here this year's budget, you can write it down, इसको आप लिख सकते हो. इस साल का जो बजट है 2021 का, it has two basic aims or two basic pillars. फर्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत. पहला हमारा एम है इस साल के बजट में आत्मनिर्भर भारत, दैट मीन्स द सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड इंक्लूजन, नॉट जस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन बट ऑल्सो फिजिकल, हेल्थ सेक्टर वाइज, ठीक है, वेलनेस वाइज, गवर्नेंस वाइज, इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द गवर्नेंस. इंक्लूजन का मतलब समावेश भी होता है, इट ऑल्सो मीन्स समावेश, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. इट ऑल्सो मीन समावेश, सबको इंक्लूड करना, एक इंक्लूसिव इकोनॉमी तैयार करना, एक इंक्लूसिव इंडिया तैयार करना. इंक्लूसिव इंडिया एंड आत्मनिर्भर इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑन विच बजट हैज बीन फ्रेम्ड. दीज आर अंडरलाइंग थीम्स, लो लाइंग थीम्स. ये बेसिक एक एम है गवर्नमेंट के दिमाग में कि ये दो चीज़ें तो हमें फुलफिल करनी ही करनी है, ठीक है. एवरीबडी इज क्लियर. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव स्टडीड that this year's union budget is based on how many pillars. इस साल का जो यूनियन बजट है वो कौन से कितने पिलर्स पे बेस्ड है? It has been based on, yes, it has been based on 6 pillars, ठीक है. 6 पिलर्स हैं जिस पे इस साल का बजट हमारा, जिसके ऊपर बुनियाद इसकी बनी है. फर्स्ट पिलर इज द हेल्थ एंड वेल बीइंग, हेल्थ एंड वेल बीइंग, दिस इज द फर्स्ट पिलर. देन सेकंड पिलर इज वी हैव फिजिकल and financial capital infrastructure, financial capital and infrastructure, ठीक है. then the third pillar is, third pillar आपका हो जाता है inclusive development. I told you about inclusion, समावेश, inclusive development. okay, this is the third pillar for the aspirational India. How many aspirational districts are there in India right now? Let me know in the comment section. हमारे भारत में अभी कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग ने तैयार की हैं, जल्दी से बताएं. इट इज़ 112, 112. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल. ओके, because of lockdown there were large scale migration also, loss of jobs also, so we are going to reinvigorate human capital. Then we have innovation and R&D. इस पैंडमिक ने हमको सिखाया है कि इनोवेशन और R&D पे खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी कंट्री में. R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन वी हैव द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है. सो दिस इज द अनदर मोटो of the government, ठीक है. So health and well-being, physical, financial, capital, infrastructure, inclusive development, reinvigorating human capital, innovation and R&D, minimum government, maximum governance. So because there are 6 pillars, we are going to study budget in 6 parts. पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, आज हम सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है, सेकेंड पार्ट अपना स्टार्ट होगा, ठीक है. आंटी उस कमरे में है चाबी. ऑलराइट, तो आज सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्लास. आई गेस आप लोग रेडी हो क्लास के लिए, ठीक है. उम्मीद करती हूँ आज के सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए आप रेडी हो. सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है. थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है. मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लास्ट क्लास. So we'll revise, brush up our knowledge on the first part also, then second part. In the next class we'll study the third part as well. Okay, तो शुरू करते हैं अपने पार्ट 1 से, and that is health and well-being. पार्ट 1 है आपका health and well-being, ठीक है. दिस इज पार्ट 1. अब इसके अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए जो याद रखना है वो ये है कि हाउ मेनी रुपीज और व्हाट अमाउंट हैज बीन केप्ट फॉर द आउटले ऑन हेल्थ एंड वेल-बीइंग, ठीक है. द अमाउंट इज, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए इसको, ठीक है. लिख लिया सभी ने अमाउंट. दिस इज द अमाउंट विच इज, दिस इज द आउटले, ठीक है. इट इज नॉट 35,000 करोड़, ठीक है. 35,000 करोड़ इज फॉर वैक्सीन, यानी कि अभी अंडरस्टैंडिंग लास्ट क्लास की वीक है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं बच्चे. सो ओवर हेयर द आउटले फॉर हेल्थ एंड वेल-बीइंग इज नॉट 35,000 करोड़, ठीक है. 35,000 करोड़ नहीं है,
पॉइंट समझ आ गया? दिस इज द टोटल अमाउंट विच हैज बीन केप्ट असाइड फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग इन 2021-22. ओके, बट इन 2021, राइट इट डाउन, इन 2021 इस चीज को लिख लीजिए, एज अगेंस्ट रुपीज 94,542 करोड़ इट वॉज केप्ट फॉर 2021. ये 2021 के लिए अमाउंट था, अभी इंक्रीज कर दिया है अमाउंट, ठीक है, अब है 2,23,846 करोड़. इन 2021 इट वॉज 94,000 ओनली. सो हाउ मच इंक्रीमेंट हैज बीन देयर? 137% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है. सो ओवर हियर कंपेयरिंग दीज टू अमाउंट्स देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 137%. ये पॉइंट याद रखना, ठीक है. 137% का आपका इंक्रीमेंट हुआ है. Then second important point in health and well-being is that rupees 35,000 crore has been kept aside for COVID-19 vaccine. ठीक है, COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं अलग से, ठीक है. बट देखो वैक्सीन की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वैक्सीन, वी नो दैट इंडिया ने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया था. इन इंडिया अप्रूवल वॉज गिवन टू 2 वैक्सीन, राइट. कौन कौन सी वैक्सीन थी, जल्दी बताओ फटाफट से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट वाज कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, राइट. सो इन जैन 2021 में वी गेव अप्रूवल टू 2 वैक्सीन्स. फर्स्ट वाज कोविशील्ड एंड सेकंड वाज कोवैक्सीन, ठीक है. अब ये याद रखना है कि इनको मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किसने किया है फॉर प्रीलिम्स. सो कोविशील्ड वाज डेवलप्ड बाय फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका, ठीक है. इट वाज डेवलप्ड बाय फार्मा जायंट AstraZeneca. This is very important point. Okay, and Oxford University. इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनी ने और एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया था, ये पॉइंट याद रखना. एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने, ठीक है. एंड इट इज़ इन पुणे. कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट? ये है आपका पुणे में, ठीक है. सो सीरम इंस्टीट्यूट जो कि निमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को भी डेवलप कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर निमोनिया. कोविशील्ड इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट, डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका. फिर जो इसके रिसर्च और डेवलपमेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ शेयर किए गए और सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोवैक्सीन. अब बात करते हैं कोवैक्सीन की. सो कोवैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय, इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप भी किया है और मैन्युफैक्चर भी किया है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने, ठीक है. सो भारत बायोटेक हैज डेवलप्ड ऑल्सो एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑल्सो कोवैक्सीन एंड इट इज इन हैदराबाद. कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है. ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो गए सभी को? प्लीज लेट मी नो. अब क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन कम्स दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज मेंशन्ड we have kept aside 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन. वेल एंड गुड, हमने 35,000 करोड़ रखे हैं इस वैक्सीन के लिए, बहुत बढ़िया. बट द क्वेश्चन इज, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एडेड अ स्टेटमेंट इन द बजट दैट मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम 35,000 करोड़. मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इज रिक्वायर्ड. एक कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है टू डेवलप दी वैक्सीन्स. अब क्वेश्चन आता है कि ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से लाई जाएगी? फ्रॉम वेयर दिस मोर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल कम? सो द आंसर इज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेस. सभी ने सुना है ये टर्म, ठीक है. टैक्सेशन में आपने सुना होगा, जब आप इनकम टैक्स पे करते हो, सेस वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा. इन इकोनॉमिक्स यू मस्ट हैव स्टडीड दिस, राइट. सो द टर्म इज सेस. सेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है. दिस इज टैक्स ऑन टैक्स. नाउ द मीनिंग इज क्लियर, टैक्स ऑन टैक्स, बट व्हाट इज द पर्पस? इसको क्यों टैक्स ऑन टैक्स लेवी किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ठीक है. सेस इज लेवीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर, ठीक है. सोशल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सेस लेवी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एंटरटेनमेंट सेस ऑल्सो, हमारे पास एंटरटेनमेंट सेस भी होता है ना. एंड इंडिया में आप देखोगे कि पेट्रोलियम और डीजल पर सेस लेवी किया जाता है, ठीक है. तो पेट्रोलियम पे किस भाव से किया जाता है? ₹2.5 पर लीटर. डीजल ₹4 पर लीटर, राइट. दिस इज द सेस ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल. डीजल पे है ₹4 पर लीटर, पेट्रोलियम पर है ₹2.5 पर लीटर, ठीक है. So this is the cess from where extra investment will be taken out for developing the vaccines. यहाँ से extra investment निकाला जाएगा वैक्सीन को डेवलप करने के लिए. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. Now the next important development that government has announced is that the Made in India, write it down,
द मेड इन इंडिया निमोकॉकल, ये हमने लास्ट क्लास में बस रेफर किया था बट इसको समझा नहीं था, राइट। मेड इन इंडिया निमोकॉकल वैक्सीन, ठीक है। Now the next important point in budget is made in India pneumococcal vaccine that is going to be rolled out across country from the present 5 states to remove the 50,000 child deaths annually। जो सालाना 50,000 बच्चे निमोनिया की वजह से ग्रसित होकर उनकी डेथ हो जाती है, उसको अवर्ट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए जो निमोकॉकल वैक्सीन है, मेड इन इंडिया वैक्सीन है, उसको अब 5 स्टेट्स में लॉन्च किया जाता है। अब उन 5 स्टेट से हटाकर पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये 5 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पर अभी ये वैक्सीन रोल आउट किया जाना था। वो 5 स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव बिहार, उसके बाद हमारा बिहार आ जाता है, देन वी हैव राजस्थान, देन वी हैव यूपी एंड देन वी हैव मध्य प्रदेश। ये हैं आपके 5 स्टेट्स जहाँ पर फिलहाल इस निमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को रोल आउट किया जा रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। बट बजट में ये कहा गया है कि अब इस वैक्सीन को ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर, एक फेज मैनर में पूरे भारत में इसको लॉन्च किया जाने वाला है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं निमोकॉकल वैक्सीन के बारे में, यू कैन क्रिएट अ नोट ओवर हियर, यहाँ पर आप नोट बना सकते हो। द निमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन विच इज़ ऑल्सो नोन एज PCV, इसको हम PCV भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज PCV, ऑलराइट। तो ये जो वैक्सीन है इसका काम क्या है, क्या करती है ये वैक्सीन? इट प्रिवेंट्स निमोकॉकल डिजीज, ओके। इट प्रिवेंट्स दी, राइट इट डाउन, निमोकॉकल डिजीज। निमोकॉकल डिजीज जो होती है वो उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। एंड दिस वैक्सीन इज अ मिक्स ऑफ सेवरल बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, इट इज अ मिक्स ऑफ सेवरल बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया इज ऑफ निमोकॉकाई फैमिली, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये निमोकॉकाई फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ सेवरल बैक्टीरिया ऑफ निमोकॉकाई फैमिली, ठीक है। एंड दिस बैक्टीरिया इज नोन टू कॉज निमोनिया। इसी बैक्टीरिया से बच्चों को, जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 5 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं, 2 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें निमोनिया इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना कॉन्जुगेट, दिस वर्ड कॉन्जुगेट, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? So conjugate vaccines, they are made using combination of 2 different components. That is why the name is conjugate. 2 से ज़्यादा components को मिलाकर जब वैक्सीन तैयार की जाए, इसलिए वर्ड conjugate ऐड किया जाता है, okay? So here conjugate vaccines are made using 2 different components. 2 different components को यूज करके इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताएं, ठीक है। ये हो गया आपका बात निमोकॉकल वैक्सीन का। अब भारत में जैन 2021 में ये अनाउंसमेंट की गई थी। इन द मंथ ऑफ जैन 2021 इट वाज अनाउंस्ड दैट इंडिया इज गोइंग टू डेवलप फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन इन इंडिया दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहला भारत में हम निमोकॉकल वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रही है, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इन कोलैबोरेशन विद, यहाँ पर आप लिख सकते हो, द सीरम इंस्टीट्यूट is developing the PCV in collaboration with, किसके साथ मिलकर? 2 पार्टीज हैं जिनके साथ मिलकर हम इस वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, इन कोलैबोरेशन विद पाथ हेल्थ केयर, राइट इट डाउन, पाथ हेल्थ केयर, एंड सेकेंड इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दैट मीन्स बिल गेट्स भी हमको इसमें हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प हमें मिल रही है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो ये आपका पीसीवी के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीलिम्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द बजट इज, आपके बजट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ₹64,180 crore outlay has been fixed for over 6 years. 6 साल इसको फेज मैनर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर व्हाट? फॉर द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, स्वस्थ भारत योजना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को?
तो ये हम 64,180 करोड़ रुपीज़ का आउटले हमने फंड तैयार किया है, जिसको हम 6 साल के पीरियड में रोल आउट करेंगे, यूज़ करेंगे। किस में? प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्वस्थ? स्वस्थ माने हेल्दी, ठीक है, स्वस्थ मीन्स हेल्दी। और स्वच्छ का मतलब क्या होता है? स्वच्छ मीन्स क्लेनलीनेस एंड स्वस्थ मीन्स हेल्दी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्वस्थ की, व्हेन वी टॉक अबाउट स्वस्थ और व्हेन वी टॉक अबाउट स्वच्छ, ठीक है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दोनों ही मिशंस है तो अलग बट जुड़े हुए हैं, दे आर लिंक टुगेदर, बिकॉज विदाउट बीइंग हेल्दी यू कैन नॉट मेंटेन क्लेनलीनेस। क्लेनलीनेस के बिना हेल्दी नहीं रहा जा सकता है। हेल्दी रहकर ऐसा नहीं है कि आप गंदगी में रहो, हेल्दी तब रह सकते हो जब क्लेनलीनेस है। स्वच्छ एंड स्वस्थ बोथ आर इंटरलिंक टुगेदर। ओके, सो व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर। ये स्कीम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज दिस स्कीम एम्स टू डेवलप, राइट इट डाउन, it aims to develop capacities in the healthcare system and that too over a period of 6 year, ठीक है, over a period of 6 years। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा? दिस इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कैन कंफ्यूज यू और ट्रिक यू इन प्रीलिम्स, ठीक है। सो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको याद रखना है, ठीक है। एंड वाई दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड, राइट इट डाउन, टू इम्प्रूव द प्राइमरी, to improve the secondary and to improve the tertiary health care system। जो आपका टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को तैयार किया गया है, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे जो दवा खाने होते हैं, वेलनेस सेंटर्स है, वहाँ से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक सभी हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाएगा। इवन द लेबोरेटरीज, ठीक है, जहाँ पर आप टेस्ट करवाने जाते हो, लैब्स होते हैं, उन सेंटर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू strengthen the existing national institutions in health sector, ठीक है, in the health sector, that is another objective of the scheme, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत what will be done under the scheme? There will be setting up of 15th health emergency operation, you can say operation centers, write it down. Under this particular scheme government is going to set up 15 health emergency operation centers, ठीक है। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सेटअप किए जाएंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स को सेटअप किया जाएगा। अब मोबाइल हॉस्पिटल्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई इंजर्ड है, कोई एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, कोई वॉर पेशेंट है, ठीक है, तो वो आपका हॉस्पिटल तक तो पहुंच नहीं पाएगा बेचारा, ठीक है। इफ समबडी इज ग्रेवली इंजर्ड, समबडी कैन नॉट स्टेप आउट टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट, समबडी इज फेसिंग सम एक्सीडेंट्स एटसेट्रा, और वॉर पेशेंट है कोई, राइट, इन दैट केस द हॉस्पिटल, द पर्सन कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल बट द हॉस्पिटल कैन रीच द पर्सन। सो फॉर दैट मोबाइल हॉस्पिटल्स हैव बीन लॉन्च। 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स होंगे, यानी कि पूरा हॉस्पिटल का ही सेटअप होगा बट वो ऑन व्हील्स होगा, दे कैन गो टू द पेशेंट, राइट। सो दैट इज वाई 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स हैज बीन लॉन्च्ड। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ 2 ही मोबाइल हॉस्पिटल्स क्यों लॉन्च होंगे हर स्टेट में? बिकॉज सी दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिस हैज बीन स्टार्टेड, द नंबर विल बी इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया है, नंबर 6 साल में इंक्रीज होगा, ठीक है। देन दे हैव ऑल्सो सेटअप, दे हैव टॉक्ड अबाउट सेटिंग अप ऑफ 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स, ठीक है। तो बायो सेफ्टी लेवल 3 BSL-3 लैब्स, 9 लैब्स सेटअप किए गए हैं। जब हम BSL की बात करते हैं, बायो सेफ्टी लैब्स की बात करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर टोटल 4 लेवल्स ऑफ बायो सेफ्टी लैब्स, ठीक है। बायो सेफ्टी लैब्स के ना 4 आप बोल सकते हो पड़ाव होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, एंड द 4th टाइप इज द मोर स्ट्रिक्टेस्ट और मोर इम्पॉर्टेंट वन। ये आपका 4th टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तभी लॉन्च किया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा ग्रेव पैंडेमिक या बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी पूरे इंडिया, पूरे ऑल ओवर द कंट्री इट गेट्स स्प्रेड, ठीक है। ओनली देन द BSL-4 इज लॉन्च्ड, बट राइट नाउ वी हैव द कोविड इन कंट्रोल। अभी इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है
जनवरी 2020 से अगर कंपेयर करें तो अभी कंट्रोल में है, राइट. सो दैट इज वाई 9 BSL 3 level labs, biosafety labs will be established. Now what is this, what does it mean? Write it down. In these labs the scientists work on those kind of, this is important for prelims, on those kind of pathogens और यू कैन से माइक्रोब्स, उस तरीके के पैथोजेंस या माइक्रोब्स पे काम किया जाता है इन लैब्स में दैट कैन कॉज सीरियस एंड पोटेंशियली फैटल, दैट मीन्स डेंजरस, पोटेंशियली फैटल का मतलब क्या होता है, डेंजरस, और यू कैन से लीथल, ठीक है, डिजीज, एंड दैट थ्रू इनहेलेशन. यानी कि अभी आप कोविड को देखोगे, ठीक है, आप ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग रूट के थ्रू ही ये फैलता है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है. तो इनहेलेशन रूट के थ्रू वो पैथोजेंस या माइक्रोब्स जो आपको सीरियस डिजीज या इंजरी दे सकते हैं, उनको हम BSL 3 में डिटेक्ट करते हैं और क्योर करते हैं, उनके बाद उनका रिसर्च करते हैं और वैक्सीन्स को डेवलप करते हैं, ठीक है. सो दैट इज वाई ओवर हियर यू विल रिमेंबर कि BSL 3 का पर्पस क्या है, ठीक है. इट इज द साइंटिस्ट वर्क इन दीज लैब, साइंटिस्ट वर्क्स ऑन दोज काइंड ऑफ डिजीज और दोज काइंड ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजेंस विच कैन एंटर योर सिस्टम थ्रू द इनहेलेशन रूट एंड पोटेंशियली कॉज यू हार्म, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, BSL 3 समझ आ गया सभी को, तो प्लीज मुझे बताएं. इफ द BSL पॉइंट 3 इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, ओके, ठीक है. तो BSL 3 में क्या होता है आपका, साइंटिस्ट उन पैथोजेंस पे काम करेंगे, माइक्रोब्स पे काम करेंगे जो सीरियसली पोटेंशियली फैटल डिजीज इनहेलेशन रूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटअप अंडर द आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इज दैट दे आर गोइंग टू सेट अप रूरल, ये लोग क्या सेटअप करने वाले हैं, रूरल एंड अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. जो आपके एरिया में भी आप देखते होंगे छोटे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, दीज आर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. सो देखो सिर्फ रूरल एरिया पे फोकस नहीं किया इस बार, they have not just focused on the rural areas now in the budget, they are also focusing on urban areas, okay. तो रूरल एरियाज में 17,788 सेंटर्स ओपन किए जाएंगे एंड इन अर्बन एरियाज 11,024 वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, ठीक है. तो ये नंबर याद रखना ना, एक 788 पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिमेंबर द ओवरऑल फिगर 17,000 एंड 11,000, ओवरऑल फिगर आप याद रख सकते हो, ठीक है. देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेट अप, राइट इट डाउन, द इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, द इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, दैट टू इन हाउ मेनी स्टेट्स, आपको नंबर याद रखना है 11 स्टेट्स. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, दे कैन राइट 20 स्टेट्स और 5 स्टेट्स, that is wrong. There are 11 states in which integrated public health labs will be established, okay, and they are also going to set up the regional research platform. अलग अलग रीजनल लेवल पर भी रिसर्च प्लेटफॉर्म सेटअप किए जाएंगे, क्योंकि देखो अभी क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको रिसर्च करानी होती है, आप जाते हो दिल्ली में या मुंबई में या हैदराबाद में, राइट, मेजर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आप वहीं जाते हो, राइट नाउ व्हाट इज करेंटली व्हाट इज द प्रैक्टिस इन इंडिया, वट एवर सिस्टम, वट एवर ब्लड हैज बीन टेस्टेड और वट एवर वायरस और वट एवर इंपॉर्टेंट थिंग हैज टू बी टेस्टेड, पीपल गो टू बिग सिटीज, राइट. बट नाउ इफ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स आर सेटअप, यू नीड नॉट गो टू द बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज. अब हर रीजन में RRP होगा, तो आपको बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. अब आपको पता है WHO के बारे में, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, सभी को पता है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड, ओके. सो नाउ WHO हैज वेरियस you can say branches also according to the countries, according to location it has various branches. तो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन का ब्रांच है वो इंडिया में सेटअप होगा, ठीक है. WHO's राइट इट डाउन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन ब्रांच, इट विल बी सेटअप इन इंडिया, ठीक है. अब ये इंडिया में, भारत में सेटअप होगा, ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए. WHO जैसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ का ध्यान रखती है, WHO टेक्स केयर ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ, इट मॉनिटर्स द इंटरनेशनल हेल्थ. नाउ इट्स साउथ ईस्ट एशिया रीजन ब्रांच इज गेटिंग सेटअप इन इंडिया. दैट इज अ बिग थिंग फॉर इंडिया, राइट. ये इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आप हेल्थ सेक्टर में आप देखोगे फोकस इंक्रीज हो गया है. दे आर मोर एंड मोर अलर्ट एंड फोकस्ड इन द हेल्थ सेक्टर नाउ.
ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जो आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, देन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो ब्रांच है वो हमारे इंडिया में सेटअप कर रहा है। वी आर सेटिंग अप द हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स, राइट। सो ऑल दीज शोज यू द आत्मनिर्भर कॉम्पोनेंट। यहाँ पर आप देखोगे अब हम बाहर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं ऑन स्टेट लेवल ऑल्सो, ऑन रीजन लेवल ऑल्सो, ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। वी आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन मेट्रोपॉलिटन सिटीज नाउ। अब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे भी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, हर स्टेट में हर रीजन में वेलनेस सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। सो वी आर मेकिंग श्योर दैट एवरी रीजन, एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट इज नाउ आत्मनिर्भर। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट इज पोषण मिशन, मिशन पोषण और पोषण मिशन 2.0 इट इज टू बी लॉन्च्ड। इसको लॉन्च किया जाएगा, द पोषण मिशन 2.0 इट इज टू बी लॉन्च्ड। क्या हुआ हमें, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। पोषण 2.0 हैज टू बी लॉन्च्ड और इसके लिए कितने रुपए अलोकेट किए गए हैं? 20,105 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड। इतने का तो इसका आउटले है, 20,000 करोड़ का। आप मोटा मोटा फिगर याद कर सकते हो, 20,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर इस मिशन में क्या किया गया है, दैट द पोषण अभियान दैट वाज लॉन्च्ड इन 2018, पोषण अभियान लॉन्च किया था ना, इसको मर्ज किया जाएगा। पोषण अभियान मर्ज्ड टू दी न्यू मिशन, इसके साथ पोषण अभियान को मर्ज कर दिया जाएगा। वाई? टू स्ट्रेंथन अप दी न्यूट्रिशनल कंटेंट। देखो, पोषण एक हिंदी वर्ड है, पोषण इज अ हिंदी वर्ड, ये एक हिंदी वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। सो हियर टू वाई दिस पोषण मिशन और पोषण अभियान हैज बीन लॉन्च्ड टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल कंटेंट, to increase the nutritional content, to increase the nutritional delivery, to increase the nutritional outreach and outcome across 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, नीति आयोग ने कितनी तैयार की हैं? 112। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी, आउटरीच, आउटकम को इंक्रीज करने के लिए दिस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एंड मर्ज्ड विद द पोषण अभियान। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर, हेल्थ केयर कंप्राइजेज ऑफ, हेल्थ केयर में क्या क्या आता है अपने भारत में, जल्दी से बताओ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स हेल्थ केयर में आते हैं? वी हैव टेलीमेडिसिन इन हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन आता है ना हेल्थ केयर में। देन वी हैव हॉस्पिटल्स इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स भी कवर होते हैं। देन वी हैव हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, ये भी तो हेल्थ केयर का ही पार्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो ना। देन वी हैव मेडिकल डिवाइसेस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, अपने जो मेडिकल डिवाइसेस है वो भी हेल्थ केयर का ही पार्ट रहता है। देन वी हैव मेडिकल टूरिज्म, दैट इज ऑल्सो जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग कंट्री का हेल्थ केयर, अलग अलग स्टेट्स का हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। देन द क्लिनिकल ट्रायल्स, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ केयर ओनली, ये भी हेल्थ केयर का ही पार्ट होता है। देन दी मेडिकल इक्विपमेंट्स, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, ये भी आपका हेल्थ केयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। द मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। देन आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग जो हम कराते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हॉस्पिटल में अ पेशेंट हैज़ टू स्टे इन द वार्ड ओवरनाइट, एक पेशेंट को वार्ड में रहना है ओवरनाइट, ठीक है, 1 दिन 2 दिन रुकना है, और पेशेंट की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कम है, वो नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को मान लीजिए कुछ सीरियस प्रॉब्लम है जिस वजह से फैमिली मेंबर्स को दूर रहना है क्योंकि वो कंटेजियस है जो इशू उनको है, उसके लिए हमें रात को एक अटेंडी रखना पड़ेगा, एक अटेंडेंट तो रखना पड़ेगा ना, वी हैव टू कीप एन अटेंडेंट। तो हम अटेंडेंट भी क्या करते हैं, हॉस्पिटल अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करेगा, हमको उसको हायर करना पड़ेगा। वो होता तो हॉस्पिटल में ही है बट हमें उसे हायर करना पड़ता है, अलग से पे करना पड़ता है, वी हैव टू पे दैट अटेंडेंट सेपरेटली। सो दैट इज आउटसोर्सिंग, कि अगर पेशेंट को अटेंडेंट की जरूरत है तो उसको हम आउटसोर्स करते हैं बाहर से सर्विसेज को। दैट सर्विस इज इन द हॉस्पिटल ओनली बट इट इज अटैच्ड विद द हॉस्पिटल, है तो बाहर से ही, ठीक है तो एजेंसी ही जो हॉस्पिटल में बैठी रहती है बट उसको पे अलग से करना पड़ता है, वी हैव टू पे देम सेपरेटली, दैट इज आउटसोर्सिंग, वो आपका आउटसोर्सिंग हो जाएगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। एंड वी नो दैट हेल्थ केयर इट हैज बिकम राइट नाउ, अगर आप 2 साल में देखो 2020 और 2021 में भी देखोगे, इट हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर। जो हेल्थ केयर है वो भारत का सबसे बड़ा सेक्टर हो गया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट।
रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट के टर्म में इट हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर, दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन। एंड रिसेंटली कोविड के चक्कर में तो ये लार्जेस्ट सेक्टर हो ही गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर में अगर हम स्पेंडिंग की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, देन करंटली वी वर स्पेंडिंग 1.6% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ओनली 1.6% ऑफ इंडियाज जीडीपी ऑन हेल्थ केयर। बट नाउ इन दिस बजट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू increase that is the spending on healthcare 2.5% of India's GDP। अब हमने इस साल के बजट में ये प्लान किया है कि बाय 2025 हम अपनी स्पेंडिंग को हेल्थ केयर में इंक्रीज करेंगे, दैट इज वी विल इंक्रीज इट बाय 2.5%, ठीक है। 2.5% इंक्रीज कैसे करेंगे ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपना जो हेल्थ केयर है, जो हम प्लानिंग करते हैं हेल्थ केयर में, वॉट एवर वी प्लान इन द हेल्थ केयर, वी प्लान इट थ्रू 3 प्रोग्राम्स। हम 3 प्रोग्राम्स के थ्रू उसको प्लान करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, वी हैव लॉन्च द नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। देन द सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑल्सो वी प्लान in the healthcare system to develop the healthcare sector, and then we plan through public private partnership। फिर हम प्लान करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू, दैट इज पीपीपी मोड, ओके। वी आर गोइंग टू स्टडी द पीपीपी मोड, ओके। हम इसको समझने वाले हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो प्लीज बताएं। When we look at a city, जब हम एक सिटी को देखते हैं, इन अ सिटी देयर आर 2 kinds of hospital that you find। एक सिटी में 2 तरीके के हॉस्पिटल होते हैं। फर्स्ट इज अ पब्लिक हॉस्पिटल, पहला हो जाता है आपका एक पब्लिक हॉस्पिटल, सेकंड हो जाता है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट। यही होता है इन अ सिटी देयर आर 2 kinds ऑफ हॉस्पिटल, पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट में क्या आ जाएगा, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स, राइट, राइट इट डाउन, द प्राइवेट diagnostic centers, they will be a part of private sector only, private hospital only। then we have clinics etc, ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं आपके, तो ये आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का पार्ट होता है। पब्लिक हॉस्पिटल इज नोन एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो बिकॉज इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इसको गवर्नमेंट फंड करती है तो इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोलते हैं। हियर वी हैव मेनी प्लान्स इन दी पब्लिक हॉस्पिटल, दैट इज फर्स्ट हो जाता है आपका आयुष्मान भारत योजना, जो इम्प्लीमेंटेड होता है पब्लिक हॉस्पिटल में, ठीक है, दी आयुष्मान भारत योजना। सेकेंड वी हैव प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, दिस इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एटसेट्रा। ऐसे कई सारे आपके योजनाज हैं गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू होती है, ठीक है। अब पब्लिक हॉस्पिटल जो होता है वो अफोर्डेबल होता है, इट इज अफोर्डेबल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल इज वेरी कॉस्टली, दैट इज बाय मोर एंड मोर पीपल दे गो टू पब्लिक हॉस्पिटल, बट देयर इज वन लूप होल, ठीक है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, स्टाफ जो होता है, नेसेसरी टैलेंट जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल में मिसिंग है, ज़्यादातर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा है डॉक्टर्स की, इक्विपमेंट्स भी सारे हैं, पैसा भी सारा है, ठीक है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट हॉस्पिटल, उन बेचारों का क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए ना ये जो योजना है ये एप्लीकेबल होती है इवन इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। ये जो योजनाज हैं these are also applicable in the private hospital through the impaneled hospitals। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट की योजना के तहत अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लोगों को, उन्हें हम इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बोलते हैं। दोज हॉस्पिटल्स विच प्रोवाइड ऑल दी अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स आर नोन एज इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। सो राइट इट डाउन दैट अ सिटीजन हु कैन नॉट अफोर्ड, a citizen who cannot afford, ठीक है, high expenditure can avail treatment from the impaneled hospital, जो खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकता अपने ट्रीटमेंट पर, वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के थ्रू अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है। इसी को बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स थ्रू द इम्पैनल्ड हॉस्पिटल टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड देम, दिस इज नोन एज पीपीपी मोड। और इसी के थ्रू ये जो 2.5% इंडिया के जीडीपी में अब हम खर्चा करेंगे वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के थ्रू ही बढ़ाएंगे अपना एक्सपेंडिचर, ठीक है। वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर एक्सपेंडिचर बाय 2.5% इन द इंडियाज जीडीपी
in the healthcare sector through the impaneled hospitals only. Point clear हो गया? So before we move forward, here's a small announcement for all of you. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है that Unacademy has launched the free test series for UPSC CSE aspirants. Okay, there are 3 test series that we have launched: T20 Daily Current Affairs Test Series, Unacademy Rise 2.0 and Unacademy Impulse. These are free of cost. Daily at 10 AM in the morning, thrice a week, Tuesday, Thursday and Saturday, ये Unacademy Impulse की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी. ठीक है, आप इसको दे सकते हो. 40 मिनट का टेस्ट होगा, 60 नंबर का, 30 MCQs होंगे. देन Unacademy Rise 2.0, here also 20 questions will be there. 30 minutes का टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा. Then daily current affairs test, daily at 7:30 PM it will be launched. 20 questions, 40 marks, 20 minutes. ठीक है, आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है. ठीक है, ये जो टेस्ट है इनका लिंक मैंने दिया हुआ है आपको कमेंट सेक्शन में, आप जाकर उस पर क्लिक कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो कोड अर्पिता10 टू अनलॉक दीज टेस्ट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ये टेस्ट देने के लिए आप अर्पिता10 कोड यूज़ कर सकते हैं. कोई भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है अनअकैडमी प्लस के ऐप पर, अर्पिता10 कोड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी आप सभी के लिए. आई होप आप ये टेस्ट ज़रूर दोगे, बिकॉज नाउ टेस्ट गिविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग ऑल दीज सर्विसेज, ठीक है, काफ़ी ऐसे मेजर स्कीम्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट इन प्लान्स और स्कीम्स को लॉन्च करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फूड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्लीज राइट इट डाउन. फूड प्रोवाइडिंग सर्विसेज और स्कीम्स कौन कौन सी मेजर स्कीम्स हैं जो आपको, जो बच्चों तक खाना और न्यूट्रिशन पहुंचाती है. फर्स्ट वी हैव द आंगनवाड़ी सर्विसेज, हमारे पास आंगनवाड़ी सर्विसेज है. ठीक है, फर्स्ट वी हैव द आंगनवाड़ी सर्विसेज. देन वी हैव द पोषण अभियान, फिर हमारे पास आ जाता है पोषण अभियान. ठीक है, देन वी हैव द ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ओके, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ इज नेशनल क्रैश स्कीम. ठीक है, ये हो जाएगा आपका, लिख लीजिए, द नेशनल क्रैश स्कीम. ओके, एंड देन वी हैव द स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स. फिर हमारे पास आता है स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स. This is the next scheme. These are the major schemes through which government is providing food or providing nutritious food. ठीक है, और इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है द इनिशियल पोषण अभियान, जो स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था 2018 में, मार्च 2018 में. द इनिशियल पोषण अभियान दैट वाज लॉन्च, इट वाज लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. कब आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जल्दी से बताएं. ऑन व्हाट डेट? यस, 8th of March. वेरी गुड. 8th of March 2018 को इंटरनेशनल विमेंस डे वाले दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. ठीक है, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोषण अभियान? ये पोषण वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब तो न्यूट्रिशन होता है, बट देयर इज अ मीनिंग ऑफ दिस पोषण. व्हाट इज द मीनिंग? इट इज प्राइम मिनिस्टर्स, राइट इट डाउन, ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. ये फुल फॉर्म इसका प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिएगा. प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म फॉर प्रीलिम्स. ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इट इज पोषण. प्राइम मिनिस्टर की ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन इज योर पोषण स्कीम. ठीक है, यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर बजट में आप देखेंगे दैट ₹1,41,678 crores over a period of 5 years for the urban Swachh Bharat Mission 2.0 has been kept aside. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बजट में 1,41,678 करोड़ रुपीस 5 ईयर्स के पीरियड के लिए अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए रखे हैं. स्वच्छ का मतलब होता है क्लेनलीनेस. स्वच्छ मीन्स क्लेनलीनेस. ओके, भारत का मतलब है इंडिया, दैट यू ऑल नो. ठीक है, नाउ हियर स्वच्छ इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड पोल्यूशन. ठीक है, वो एरियाज जहाँ पर वेस्ट है, पोल्यूशन है, उसको एलिमिनेट करना, उन एरियाज को टारगेट करना. ठीक है, उन एरियाज को टारगेट इस मिशन के द्वारा किया जाएगा. दोज एरियाज विच जनरेट वेस्ट एंड कॉजेज पोल्यूशन विल बी टारगेटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर मिशन. ओके, और
कितने रुपीज रखे गए हैं? ₹1.41 लाख करोड़. दिस हैज बीन केप्ट असाइड एलोकेटेड फॉर दिस मिशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एरियाज इन विच द पॉल्यूशन और वेस्ट कैन बी एलिमिनेटेड. अब वो एरियाज क्या हैं? फर्स्ट आपका हो जाएगा we are focusing this mission we are focusing on eliminating the waste and the pollution through urban transportation. अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम वेस्ट और पोल्यूशन को खत्म करने की, कम करने की मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, वी आर गोइंग टू क्रिएट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. हम लोग, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हीकल्स यूज़ ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करें. ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. ठीक है, एग्जाम्पल कैन बी बसेस, बस हो जाएगा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल कैन बी मेट्रो. नियो मेट्रो पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने. वी स्टडीड द नियो मेट्रो इन द लास्ट क्लास. इट विल रिड्यूस, राइट इट डाउन, इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन थ्रू दी PPP मॉडल. PPP मॉडल यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर दे आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड. देन सेकेंडली इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. अब देखो, ट्रेन्स और बसेस स्टैब्लिश होंगी, मेट्रो स्टैब्लिश होगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, लोगों को हायर किया जाएगा फॉर मैनेजमेंट, फॉर ड्राइविंग, जनरेट एम्प्लॉयमेंट. अगर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोग यूज करते हैं, तो इट विल जनरेट रेवेन्यू ऑल्सो. ओके, नाउ दी सेकेंड इज, यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, वी आर गोइंग टू सेट अप द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट गार्बेज. ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट ऑल्सो इन द सिटीज. ठीक है, देन फोर्थ विल बी, फोर्थ क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन, राइट इट डाउन, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, SUP, सिंगल यूज प्लास्टिक. फिफ्थ हो जाएगा द रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन. ठीक है, so we are going to target the reduction in air pollution also. okay, कैसे? by managing the waste from construction and demolition activities. जब आप बिल्डिंग्स को तोड़ते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो, उस वेस्ट को मैनेज करके हम एयर पोल्यूशन को मैनेज करेंगे, रिड्यूस करेंगे. ठीक है, बाय बायो रिसाइकलिंग ऑफ डंप साइट्स. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यू कैन राइट इट डाउन ओवर हियर, कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम करेंगे? बाय मैनेजिंग, SUP मीन्स सिंगल यूज प्लास्टिक. ओके, सो ओवर हियर राइट इट डाउन, बाय मैनेजिंग the waste from construction and demolition activities. this is the first way. ठीक है, and second हो जाएगा bio, write it down, bio recycling of dump sites. ठीक है, जो आपके कूड़े कचरे वाली साइट्स होती है, जहाँ आप डंप करते हो गार्बेज, उनको रिसाइकिल किया जाएगा, बायो रिसाइकिल किया जाएगा. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. सिक्स्थ पॉइंट हो जाएगा आपका प्रोवाइडिंग. Sixth point will be providing clean water. Okay, and seventh point will be proper sanitation. These are the 7 goals in our mind to implement in the urban स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, और आप देखोगे ये सिर्फ स्वच्छता से रिलेटेड नहीं है. इफ वी आर टारगेटिंग ऑल दीज एरियाज, वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट वी आर जनरेटिंग अ स्वस्थ भारत. हम स्वच्छता की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वस्थ भारत की भी बात कर रहे हैं. थ्रू दीज पॉइंट्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक श्योर दैट आवर कंट्री इज हेल्दी, बिकॉज जहाँ पर साफ सफाई है वहाँ पर हेल्थ है, जहाँ साफ सफाई नहीं है वहाँ हेल्थ नहीं है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. So now the next important point in the budget is that rupees 2,217 crore are going to be set aside or kept aside for tackling the air pollution. एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए हम 2000 करोड़ साइड में रख रहे हैं. ठीक है, फॉर दी, राइट इट डाउन, 42 अर्बन सेंटर्स, फॉर दी 42 अर्बन सेंटर्स विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन, विद दी मिलियन प्लस पॉपुलेशन. उन सेंटर्स के लिए, उन एरियाज के लिए हम 42 अर्बन सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ अराउंड 2K करोड़ रुपीज रखे हैं. नाउ फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट मेनली यूजेस 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. इस तरीके के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जहाँ पर मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है ना, उस एरिया में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट यूजेस. ठीक है, तो ये पढ़ना आपके मेंस के लिए ज़रूरी है. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 3. ओके, फर्स्ट पॉलिसी इज दैट गवर्नमेंट एड्स अ टैक्स. गवर्नमेंट क्या करती है? एक टैक्स ऐड कर देती है टू रेज प्राइस of any commodity or activity so that
it discourages more people to buy or do that. Yes, green tax जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो it will discourage more people to buy or do that. ओके, जैसे कि ग्रीन टैक्स हो गया, ठीक है. सेकंड आपका हो जाएगा दैट दिस इज द मोस्ट यूज्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इट गिव्स सब्सिडी. सेकंड हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड सब्सिडी, इंकरेजमेंट टू एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी or product which the government thinks is second best option. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ताकि वो जो एक पॉल्यूशन जनरेटिंग आपका आइटम है या आर्टिकल है उसको आप अवॉइड कर सको, सेकंड बेस्ट ऑप्शन तक जा सको. ठीक है, जैसे कि आपने अभी ई सिगरेट्स के बारे में सुना होगा, हालांकि इसको डिस्करेज किया जा रहा है. ठीक है, फिर हो जाता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्शन. थर्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट बैन्स सर्टन पोल्यूटेंट्स. अब सीधा बैन लगाती है गवर्नमेंट बैन्स सर्टन पोल्यूटेंट्स और सर्टन एक्टिविटीज, ठीक है, दैट कैन इंक्रीज पोल्यूशन, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. ओके, तो गवर्नमेंट बैन्स, ठीक है, और सर्टन पोल्यूटेंट्स और एक्टिविटीज दैट कैन इंक्रीज द पोल्यूटेंट्स. एंड फोर्थ स्टेप दैट गवर्नमेंट यूजेस इज दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द परमिट्स. ये भी आपका फायर क्रैकर्स में यूज हुआ था. ठीक है, दिस पॉलिसी वॉज ऑल्सो यूज इन द फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस परमिट्स सो दैट it can regulate and keep a track, ताकि नजर रख सके, मॉनिटर कर सके. ठीक है, सो फर्स्ट गवर्नमेंट कैन बैन, गवर्नमेंट कैन गिव परमिशन टू रेगुलेट इट एंड टू कीप अ ट्रैक. ओके, और गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी और गवर्नमेंट कैन ऐड अ टैक्स, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन टैक्स. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो प्लीज मुझे बता दीजिए. इफ द पॉइंट इज क्लियर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द बजट दैट हैज बीन हाईलाइटेड इज, राइट इट डाउन, द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी. The vehicle scrappage policy. This is the next important point that has been announced in this year's budget. इस साल के बजट में इसको अनाउंस किया गया है. इस स्क्रैपेज पॉलिसी में कहा गया है that the old polluting vehicles should be off the road. उनको सड़कों से हटाना पड़ेगा. ठीक है, the old polluting vehicles should be taken off the road. अभी फिलहाल करेंटली सिस्टम क्या है, व्हाट इज द करेंट सिस्टम? ठीक है, जो हमारे पोल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स हैं, ठीक है, आपको व्हीकल्स को री रजिस्टर करना पड़ता है आफ्टर एवरी 15 ईयर्स. यू नो दैट, राइट? ये तो सभी को पता है दैट द व्हीकल्स हैव टू बी री रजिस्टर्ड विद द आरटीओ आफ्टर 15 ईयर्स. ठीक है, 15 ईयर्स के बाद री रजिस्टर कराना पड़ता है. एंड फॉर 5 ईयर्स if it passes government fitness test, अगर गवर्नमेंट का फिटनेस टेस्ट ये क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है इसके यूसेज को. ठीक है, तो मान लीजिए एक गाड़ी है, लेट्स से दिस इज अ कार. ठीक है, 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए इस गाड़ी को आपके पास. यू हैव अ कार एंड इट हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स. सो यू विल गो टू द आरटीओ. आप आरटीओ के पास जाओगे और उसके बाद आप कहाँ जाओगे, गाड़ी को री रजिस्टर कराओगे. यू विल गेट योर कार री रजिस्टर्ड. ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 ईयर्स. ठीक है, आप 5 ईयर्स के लिए इसको री रजिस्टर कराओगे. सो टोटल दैट कार हैज बीन ऑन रोड फॉर 15 + 5 दैट इज 20 ईयर्स. ठीक है, टोटल जो कार है वो कितने साल तक सड़कों पे रही? 20 साल तक रही ना. बट इधर भी 2 कंडीशन है अब गवर्नमेंट ने जो रखी हैं. गवर्नमेंट हैज केप्ट 2 कंडीशंस. इफ द इंजन इज गुड, अगर इंजन गुड है देन ओके. ठीक है, ग्रीन लाइट, इट कैन कंटिन्यू ऑन रोड. ठीक है, बट इफ द इंजन इज नॉट गुड, मान लो कि इंजन जो है, ठीक है, वो गुड नहीं है, वो सही नहीं है. ठीक है, इफ इंजन इज नॉट गुड देन इट विल नॉट कंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं करेगा. ठीक है, ये गाड़ी सड़क पे कंटिन्यू नहीं करेगी. एंड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, दिस इज द प्राइवेट व्हीकल, ये तो प्राइवेट व्हीकल की बात हो गई. फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स व्हाट हैज बीन मेंशन्ड दैट इट कैन बी ऑन रोड फॉर 15 ईयर्स ओनली. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो जल्दी से बताएं.
ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो दिस वॉज योर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ पार्ट 1। ये बजट के पार्ट 1 का इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड सो फार, अभी तक हमने पढ़ा है दैट द ओवरऑल व्यू ऑफ यूनियन बजट 2021 इज फोकस ऑन आत्मनिर्भर भारत, कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया है, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, एक रिकरिंग थीम है ये। ठीक है, उसके बाद वी हैव स्टडीड, यहाँ पढ़ते हैं, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन किया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में हाईलाइट की गई हैं, सपोर्ट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, रिकैपिटलाइजेशन बैड बैंक, अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल, दीज आर द पॉइंटर्स ऑफ यूनियन बजट 2021। और हमने ये भी पढ़ा कि बजट प्रपोजल्स दे आर बेस्ड ऑन 6 पिलर्स, हेल्थ एंड वेलबींग, दैट वी हैव स्टडीड नाउ। अब हमने हेल्थ एंड वेलबींग बहुत अच्छे से ओपनली पढ़ लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। हेल्थ एंड वेलबींग क्लियर हो गया, हमने बजट एलोकेशन भी पढ़ लिया, वी हैव स्टार्टेड द आउटले ऑल्सो। सेकेंड, वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट में हम अलग से क्लासेस तैयार करेंगे टू कवर ऑल दीज 4 पार्ट्स। ठीक है, इन 6 पार्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी। Now we have seen inclusive development of aspirational India. In agriculture sector we have created स्वामित्व scheme. ये scheme तो सभी को पता होगा, it has been in use since 2020. So far about 1.8 lakh property owners from 1241 villages have been issued with property cards under the स्वामित्व scheme. स्वामित्व माने क्या होता है? स्वामित्व माने ownership. ठीक है, तो अगर आपके पास ज़मीन है रूरल एरिया में तो आपको उसका प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा टू मेक श्योर दैट यू कैन प्रूव योर ओनरशिप ऑन द लैंड. इट हैज़ बीन नाउ एक्सटेंडेड टू कवर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नॉट जस्ट फ्यू विलेजेस. एंड द लोन एलोकेशन हैज़ बीन इंक्रीज टू 6.5 ट्रिलियन फ्रॉम 15 ट्रिलियन इन द लास्ट फिस्कल ईयर. ठीक है, देन कॉटन की अगर हम बात करें, इट हैज़ इम्पोज्ड अ 10% इम्पोर्ट टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दिस फाइबर टू हेल्प द फार्मर्स. And government has also raised levy on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. ये numbers आपको याद रखने हैं. ठीक है, दिस नंबर, वी नो इंडिया इज दी बिगेस्ट कॉटन ग्रोअर, पता है ना आपको, तो हमारी सेल भी, आउटपुट भी इंक्रीज करेगी, उस वजह से हमने इम्पोर्ट टैक्स भी इंक्रीज कर दिया है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो जल्दी से बताएं. ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज स्वामित्व. ये स्वामित्व क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट इट डाउन. Swamitva is survey of villages and mapping with improvised technology in village areas where drone technology has been used to map the lands to mark the ownership of people. And it is a collaborative effort of Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Department, State Revenue Department and Survey of India. जब आप लैंड को मैप करोगे तो सर्वे ऑफ इंडिया की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि ये काम तो सर्वे ऑफ इंडिया का ही है. ठीक है, you have to remember who are the collaborating partners in the scheme. What is the aim? For mapping the land parcels in rural areas through the continuously operating reference station and drone technology. Then mapping will be done in phase wise manner. 2020 से 2024 तक आपकी मैपिंग चलेगी and property cards will be issued to the landowners. Okay. Then for migrant workers and laborers, one nation one राशन कार्ड स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. यानी कि अगर आप राजस्थान के हो तो आपके पास अगर राशन कार्ड है, वही राशन कार्ड आप किसी और स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली में या फिर पंजाब में, शो कर सकते हो और राशन ले सकते हो. क्योंकि क्या होता है, माइग्रेंट लेबर्स बेचारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं. ठीक है, तो उनके पास जो राशन कार्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होता दूसरे स्टेट में. तो इसीलिए इस चीज़ को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है. And 86% of the beneficiaries are being covered in this particular scheme. Okay, then we have 4 labor codes which have been implemented for the first time in India. यहाँ पर ना gig economy को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. We are going to study these terms in economy, gig economy. ठीक है, what is gig economy? Then financial inclusion में आप देखोगे स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया गया है. ठीक है, क्रेडिट फ्लो के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज, ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? So these are the important highlights which we are going to continue with in the part 3. Part 3 आपका अनाउंस हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है Simplifying UPSC with Ease. This is the Telegram channel where you will get the class notes, class PDF and the notification about the next free classes. जितने भी free classes मैं लेती हूँ उन सभी की notification, PDFs, resources, class notes, everything you will be getting on this Telegram channel.
ये आपका टेलीग्राम चैनल, यू कैन सर्च इट ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू इनरोल इन दिस फ्री टेस्ट सीरीज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ठीक है, ये फ्री टेस्ट सीरीज है जो आज से स्टार्ट हो रही हैं, जिसको आप इनरोल कर सकते हो। यू कैन यूज कोड अर्पिता10 ऑल्सो टू गेट द अनलॉक द टेस्ट सीरीज फॉर फ्री। ओके, द लिंक ऑल्सो हैज बीन गिवन। ठीक है, इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो फटाफट से इसमें इनरोल कर लीजिए। टेस्ट सीरीज देंगे तो आपकी प्रिपरेशन ईजी रहेगी। ओके, ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।